inauguration of MEWA India 2024. So as we have our dignitaries on stage, joining us for the lamp lighting, I would request we have Gunjan Jain, we have Rahul Kamath, Deepak Agarwal, Raju Bhatia, Yash Kavdi, Sameer Bhanushali, Sunil Sharma, along with our chief guest. Wow, what an incredible and a pious moment when you have somebody of the stature of our honorable chief guest joining us today, Shri. I hope that the shawl will be more respectful for such a respectable person. Ladies and gentlemen, a warm, warm round of applause once again for our chief guest. May I request Sunil Sharma to help us with the Safa. With respect for our chief guest, Shri Om Birla Ji. And if I could request Mr. Gunjan Jain and Rahul Kamath to help us with the bouquet to be presented to our chief guest, Shri Om Birla Ji. Ladies and gentlemen, a roaring, roaring round of applause as we have him joining us today. Thank you so much. And with that, I would request Mr. Gunjan Jain to join us. Also, as a protocol, may we request all of you on the left to please be seated. We need to do it for our protocol. May we request you all not to clutter towards the left. There are lovely seats for you on the right. So may we please request you, do not stand on the aisle. It's a protocol. May we request you to please be seated. So ladies and gentlemen, on this pious note, may we request everyone, I'll give you a couple of seconds. We do not want anyone in the room to be standing. I'll give you another couple of seconds. Nobody in the room has to stand. May we please request you to be seated. मैं चाहूँगी कि आप सब अभी सीट्स पर बैठ जाएं. Once on the side, आप please बीच में आ जाइए and get these seats occupied. I'll give you one or couple of minutes. Yes, thank you. Enjoy करिए. We have such a legend with us, Shri Om Birla Ji, who has taken out his time. उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर मेवा इंडिया 2024 के इनॉग्रेशन में आए हैं. मैं चाहूँगी जो भी लेफ्ट में है to please be seated. With that, Gunjan Ji, good for us to start? All right. So ladies and gentlemen, with that, we have with us the President of the Nuts and Dry Fruits Council India, Mr. Gunjan Jain, who's going to be officially welcoming our chief guest. आदरणीय ओम बिरला जी, हमारे अध्यक्ष साहब, बहुत बहुत आभार. आप हमारे इस इवेंट पे, सूखे मेवे के इस इवेंट पे जो हमने अपनी एसोसिएशन के लिए किया, आप आए. हमने बस एक बार आपसे आके एक विनम्र निवेदन किया और आपने कहा हाँ मैं ज़रूर मैं आ जाऊँगा. ये इतना अच्छा काम तुम कर रहे हो, एक सेहत वाली जो प्रोडक्ट है उसको बना के कर रहे हो. तो इसी पे बोलना चाहूँगा अध्यक्ष साहब, ये इंडस्ट्री हमारी लगभग रिटेल में आज एक 56,000 करोड़ की इंडस्ट्री है. ज़्यादा हम अभी इंपोर्ट करते हैं, पर इंपोर्ट में भी हमारी जो एक बहुत बड़ी चीज़ है
ये इंडस्ट्री इंपोर्ट करके भी मेक इन इंडिया कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है मेक इन इंडिया, तो हमारी ये इंडस्ट्री इंपोर्ट करती है, पर इंपोर्ट करती है हर चीज़ कच्ची। अगर बादाम मंगाती है तो साबुत, अखरोट मंगाती है तो साबुत, उस सब को इंडिया में तोड़ा जाता है, इंडिया में प्रोसेस किया जाता है। तो कुछ हिस्सा मेक इन इंडिया का हम ऑलरेडी कर रहे हैं। अब इस मेक इन इंडिया को और बड़ा करने की कोशिश है कि हम कैसे इंडिया में मंगा के वापस री एक्सपोर्ट कर सके, विदेशी मुद्रा इंडिया में ला सके, हमारे देश में ला सके। ये इंडस्ट्री अध्यक्ष साहब लगभग आज डायरेक्टली 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, क्योंकि हम हर चीज़ यहाँ मेक इन इंडिया करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले फॉरेन से बन के आता था, हम लोगों ने उसको बदला, आज हम उसे इंडिया लाते हैं कच्चे को और यहाँ पे प्रोसेस करते हैं, और अब कोशिश कर रहे हैं यहाँ से बाहर भी भेजें। NDFC में हमारी कोशिश है, भारत बढ़ रहा है, भारत की खपत बढ़ रही है, भारत का रुतबा हर जगह हर देश में अब बढ़ रहा है। तो उस ग्रोइंग इंडिया कैंपेन को देख के हमारा वो था कि हमारे नट्स और ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री, सूखा मेवा का व्यापार भी बढ़े, इसलिए ये NDFC बनी। अब इसी उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। आज हमारी पॉपुलेशन जो है बहुत यंग पॉपुलेशन है, तो ये हेल्दी और यंग इंडिया के अभियान के लिए मैं बहुत बहुत आभार अगेन करूँगा अध्यक्ष साहब का, वो आए, और चाहूँगा कि वो कुछ शब्द कहें हमारी इस इंडस्ट्री के लिए, हम लोगों को प्रोत्साहन दें, हम और इसको बढ़ा सकें। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। विद दैट, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बुलाना चाहेंगे हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल श्री ओम बिरला जी को। यहाँ पर आप आइए एंड प्लीज एड्रेस करिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। वी सल्यूट यू सर एंड ओवर टू यू। आज इस यशु भूमि में पहली बार ड्राई फ्रूट्स और नट्स एग्जीबिशन के साथ साथ मेवा इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस में आए सभी 20 देशों से ज्यादा सदस्यगण भारत के अलग अलग राज्यों से आए। इस व्यापार, उसके साथ जुड़ी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले सभी लोगों को मैं इस मेवा इंडिया 2024 के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि नट्स एवं ड्राई फ्रूट काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ये एक सफलतम प्रयास किया गया, और पहले प्रयास में जिस तरीके की सफलता के परिणाम आए, मैं इसके लिए एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गुलजेन जैन जी को, इस संस्था के अध्यक्ष राजू भाटिया जी को, राहुल कामत जी को, और विशेष रूप से जिनके आग्रह पर आया सुनील जी को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस एसोसिएशन ने एक ऐतिहासिक प्रयास किया है जिसका बहुत दूरगामी प्रभाव भारत में होगा, भारत के इंडस्ट्री सेक्टर को होगा, भारत की ट्रेड सेक्टर को होगा, और विशेष रूप से एसोसिएशन ने एक प्रयास किया है
कि हम किस तरीके से भारत के अंदर ड्राई फ्रूट और नट्स का, एग्रीकल्चर, बागवानी का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि हम ड्राई फ्रूट और नट में आत्मनिर्भर भी हों और दुनिया के अंदर हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। इसके लिए एक प्रयास करने की कोशिश की है। भारत दुनिया का हमेशा ट्रेड, व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। हम अगर भारत के विरासत में जाएं तो जब साधन नहीं हुआ करते थे, उस समय भी हमारे व्यापार करने वाले, ट्रेड करने वाले व्यापारी कई दिनों की यात्रा करने के बाद भी भारत के स्पाइस, भारत के मसाले दुनिया में बेचते थे। उनकी सुगंध आज भी दुनिया में उनकी महक है। मुझे याद है, संसाधनों की कमी थी, पैकिंग की नई टेक्नोलॉजी की कमी थी, कई सारे संसाधनों के अभाव थे। लेकिन उसके बाद भी जब हम विरासत में जाते हैं तो मैं देखता हूं कि दुनिया के अंदर भी उन अधिकतम देशों के अंदर भारत का व्यापारी, ट्रेड और व्यापार का काम आज भी भारत का व्यापारी वहां पर कर रहा है, जो मूल भारत का है। और कई देशों में तो मैंने पूछा, कई की तो पीढ़ियां वहां पर रहते हुए भारत से माल परचेज करती थी और फिर वहां मसाले, अन्य उद्योगों को बेचने का, दुकानों को बेचने का काम करती थी। और इसी के साथ साथ ड्राई फ्रूट में हम बहुत बड़े इंपोर्टर दुनिया से हैं, क्योंकि भारत का बाजार सबसे बड़ा बाजार है। उपभोक्ताओं की दृष्टि से देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा उपभोक्ता भारत में है। इसलिए काफी सालों से हम विशेष रूप से ड्राई फ्रूट और मेवे दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करते हैं। और मुझे खुशी है, कुछ ड्राई फ्रूट, कुछ हमारी जड़ी बूटियां और हमारे कोई फ्रूट्स आज हम दुनिया में बेचने का काम करते हैं। अभी मैं निकल रहा था तो मैंने केसर का स्टॉल देखा। भारत की केसर दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी की केसर है। और इसीलिए हम जब कश्मीर की बात करते हैं तो हम जन्नत बताते हैं। केसर की क्यारी के रूप में भारत दुनिया का दूसरा नंबर का देश है, जो दुनिया के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर केसर का एक्सपोर्ट करने का काम करता है। निश्चित रूप से कुछ इलाके हमारे हैं, हिमाचल का इलाका है जिसका सेव दुनिया में जाता है। हमारे कुछ इलाके काजू उत्पादन के भी हैं, कुछ इलाके हमारे बादाम के उत्पादन के भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। लेकिन फिर भी बड़ी मात्रा के अंदर हम मेवे दुनिया से इंपोर्ट करने के काम कर रहे हैं। हमारी दार्जिलिंग की चाय, बेंगलोर की कॉफी, उसने दुनिया के अंदर अपनी साख जमाई है। और साख के साथ दार्जिलिंग की चाय, कर्नाटक की कॉफी दुनिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर जाती है और लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन विशेष रूप से मैं आज एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों के जो एक्सपोर्टर हैं उनकी एग्जीबिशन भी लगाई है। आपकी कॉन्फ्रेंस होगी, मंथन होगा, विचार विमर्श होगा।
और विचार विमर्श के साथ हम ट्रेड व्यापार को किस तरीके से और बढ़ा सकते हैं, इस दिशा के अंदर भी काम होगा। मुझे अभी बता रहे थे कि किस तरीके से इस समय भारत के अंदर हम बादाम हो, अखरोट हो, ऐसे कई कच्चे माल को यहां पर मंगाते हैं और प्रोसेस और पैकिंग कर कर देश में भी बेचते हैं और दुनिया में भी बेचते हैं। इससे लाखों लोगों का रोजगार ये संस्थाएं दे रही है, व्यापार दे रहा है, ट्रेड दे रहा है। आज लाखों लोग इस काम में लग रहे हैं। विशेष रूप से केरल की साइड में चले जाएं, कर्नाटक साइड में चले जाएं तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है। लेकिन एक दिशा और बनाने की आवश्यकता है, जहां दुनिया के बढ़िया मेवे हम इंपोर्ट करें। अब समय आ गया है कि भारत के अंदर हम इनका उत्पादन करने का भी काम करें। भारत के अलग अलग राज्यों की अलग अलग जलवायु क्लाइमेट है, क्लाइमेट की विविधता भारत में है। भारत की भौगोलिक स्थितियां भी अलग है। भारत की संस्कृति विविधता भारत की ताकत है और दुनिया में हमने दिखाया है कि हम किस तरीके से, हमारी जितनी डाइवर्सिटी है उतनी लोकतंत्र की हमारी ताकत है। और आज दुनिया देखती है कि इतनी विविधताओं वाला देश, जहां अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग उत्पादन, अलग अलग जलवायु परिवर्तन, उन सब के बाद भी भारत इन विविधताओं के कारण ही एक है। ये दुनिया आश्चर्यचकित करती है। दुनिया के देशों को जब आप बताएंगे कि दुनिया के जितने भी देश धर्म है, वो धर्म की पालन करने वाले लोग भारत में रहते हैं, उनको स्वतंत्रता है। और इसीलिए दुनिया के अंदर लोकतंत्र की ताकत भी भारत की है कि हमने संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर भारत का विकास किया है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे और इस विकसित राष्ट्र के सपनों को पूरा करने के लिए हम सबको सामूहिकता से काम करना होगा, मिलकर काम करना होगा। हर क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग लोगों को किस तरीके से विकसित भारत में हमारा सहयोग हो और हम दुनिया के अंदर विकसित भारत के सपनों को भी कर सके और दुनिया के देशों को भी आर्थिक डेस्टिनेशन के काम करने के लिए भारत से ज्यादा उपयुक्त जगह कोई नहीं होगी। अभी एसोसिएशन के पदाधिकारी मुझे बता रहे थे कि कई देशों के व्यापारी यहां पर व्यापार करने आते हैं और उनकी अपेक्षा है, उनकी इच्छा है कि हम आने वाले समय के अंदर भारत के अंदर ही हमारे पैकिंग सिस्टम को, हमारे रॉ मटेरियल को पैक करने के सिस्टम को डेवलप करें और उसके साथ साथ दुनिया के कई देश ये भी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर एग्रीकल्चर और बागवानी सिस्टम को कैसे डेवलप करें ताकि हम दुनिया के अंदर इन मेवे उत्पादन का बड़ा केंद्र भारत बन सके। और मुझे आशा है अगर आपके प्रयास रहे, हम किसानों को, प्रगतिशील किसानों को नई दिशा दें, जो हमारी जिस देश प्रदेश का जैसा क्लाइमेट है उस क्लाइमेट के अनुसार कौन सा मेवा, कौन सा ड्राई फ्रूट वहां उत्पादन होने की संभावना है, पैदा होने की संभावना है, उस पर विचार करें, उनको तकनीकी दक्षता दें, उनको एग्रीकल्चर की नई टेक्नोलॉजी देने का काम करें। दुनिया के अंदर जहां जहां भी
ऐसे ड्राई फ्रूट पैदा हो रहे हैं, उनके बढ़िया पौधों और बीजों को लाने का यहाँ पर काम करें, ताकि आने वाले समय के अंदर हम भारत के किसान को ड्राई फ्रूट उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाने में कामयाब हो सके। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि दुनिया की बेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के यहाँ पर लाएं, हमारे किसानों को उसके लिए प्रशिक्षण दें, उनको टेक्नोलॉजी का सहयोग करें, उनको आर्थिक सहयोग करें और आने वाले समय के अंदर भारत को ड्राई फ्रूट और नट उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाने का आपका लक्ष्य और संकल्प पूरा होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, आने वाले समय के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी, ड्राई फ्रूट और नट के अंदर भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन का केंद्र बने। इस लक्ष्य के साथ हमें काम करना है और मुझे आशा है आज दुनिया भर में भारत के मसाले जाते हैं। मैं जिस इलाके में आता हूं वहां का धनिया दुनिया में जाता है, जिसकी महक है। भारत का धनिया हो, भारत की हल्दी हो, भारत की मिर्ची हो, ये ऐसे काली मिर्च हो, ये ऐसे मसाले हैं जो भारत से दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट हो सकते हैं। हमें उसके लिए नई टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। हमें किसानों को नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए विज्ञान, नए रिसर्च के साथ कम जमीन पर ज्यादा उत्पादन, इस दिशा के अंदर भी काम करना होगा। राजस्थान और गुजरात का इलाका जीरा का बड़ा उत्पादन का हक है। तो आने वाले समय के अंदर जितने भी हमारे मसाले हैं, इन मसालों के उत्पादनों का हब भारत बना सके, यहीं प्रोसेस हो सके, यहीं पैकिंग हो सके, ताकि एक तरफ किसानों को काम मिलेगा, किसानों की आमदनी होगी, प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, पैकिंग प्लांट मिलेगा तो रोजगार मिलेगा। यहाँ पर हम रोजगार के नए सृजन करने के लिए भी ये इंडस्ट्रीज सबसे बड़ा काम कर सकती है और इसके लिए आपके एसोसिएशन ने कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में इसका बेहतरीन परिणाम होगा। आपने पहली बार इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। इस कॉन्फ्रेंस को लेकर दुनिया भर के लोगों में बहुत उत्साह है। उन भारत में आने वाले लोगों को आप भारत की विविधताएं दिखाएं, यहाँ के पर्यटन सर्किट दिखाएं, अलग अलग राज्यों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसानों से उनका संवाद करें। किसान और उनका संवाद का भी एक सेशन आपको रखना चाहिए, ताकि किसान क्या पैदा कर सकता है, कौन सी क्लाइमेट में क्या चीज हो सकती है। किसान और व्यापारी अगर ये दोनों मिलकर इस दिशा के अंदर काम करेंगे तो हम ज्यादा बेहतरीन और ज्यादा उत्कृष्ट परिणाम निकाल पाएंगे। इसलिए मैं पुनः एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को और देश भर से आए सभी व्यापारी, ट्रेड, प्रोसेसिंग, पैकिंग और उसके साथ दुनिया भर से आए लोगों को भारत की धरती पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप ये जो यशोभूमि देख रहे हैं, ये यशोभूमि भारत के प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। हमारी P20 की पहली कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई थी, जिसमें देश भर के G20 के देशों के स्पीकर भारत में आए थे। जब उन्होंने यशोभूमि को देखा तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को देखा। भारत के अंदर यशोभूमि हो, भारत मंडप हो, आने वाले समय में भारत विकास के नए आयाम छू रहा है और इस तरीके के यशोभूमि और भारत मंडप के केंद्रों से एग्जीबिशन और सेमिनार का बड़ा केंद्र यहाँ होगा। आने वाले समय में यहाँ पर बड़े होटल भी बनने वाले हैं, ताकि बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस का सेंटर होगा
और दुनिया के लिए, विश्व के लिए एग्जीबिशन लगाने के लिए भारत एकमात्र केंद्र होगा। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और आपने यहाँ पर इस एग्जीबिशन को, इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ किया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम अपने चीफ गेस्ट श्री ओम बिरला जी को बहुत ही धन्यवाद करना चाहेंगे। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर द ऑफिशियल वोट ऑफ थैंक्स मैं बुलाना चाहूँगी राजू भाटिया जी को ऑन द डायस। इनके लिए जोरदार तालियां से इनका स्वागत करते हैं मिस्टर भाटिया। हेलो। आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, हम NDFCI के सभी सदस्य आपका मेवा इंडिया 2024 में आपके समय एवं उपस्थिति के लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मान्यवर, आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में हम भारत के ड्राई फ्रूट सूखे मेवों को पूरे विशाल पताल पर अंकित करने के लिए प्रतिबद्ध है। NDFCI भारत सरकार के मेक इन इंडिया एवं स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत ड्राई फ्रूट्स उत्पादन में भारत को एक अग्रणी शक्ति के रूप में विश्व पटल पर अंकित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। NDFCI आपने इन प्रयासों में भारत सरकार से अनुदान एवं सहायता की कामना भी रखता है। जो आपने हमारे को अभी दिया है, जो आपने अभी लेक्चर दिया हमारे को उससे आश्वासन होता है कि आप हमारी बहुत मदद करेंगे। जैसे कि विश्व लेखिका हेलन केलर ने बोला है, अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन अचीव सो मच। तो आपके नेतृत्व के अंदर और आपके मार्गदर्शन में हम जो है मिलजुल कर जो है ये जो है व्यापार को बढ़ाएंगे, किसानों का जो है काम बढ़ाएंगे। और हम चाहते हैं कि हमारी मदद आप ये करें। हमारा उद्देश्य है कि कश्मीर के अखरोट, राजस्थान में खजूर, सुदूर भारत, पूर्वी भारत में बेरीज, महाराष्ट्र एवं कर्नाटका में किशमिश, दक्षिण भारत में काजू के उत्पादन को प्रोत्साहन देकर क्षेत्रों के युवाओं और किसानों के मुख्य धारा में जोड़कर भारतीय एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा को भागीदार बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके एक बार पुनः कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। शुक्रिया आपका आने का, आपकी जो है मार्गदर्शन का। और हम जो है चाहते हैं कि जो है ड्राई फ्रूट्स की तरफ जो है आप एक स्पेशल अटेंशन दें। आपसे एक और हमारा निवेदन है, हमने जो है कुछ एक आधा एग्जाम्पल भी मैं आपको देना चाहूँगा। हमने जो है कश्मीर के अखरोटों के लिए जो है एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट MOU चिली के साथ की है, जिसके अंतर्गत वहाँ पर जो है उत्पादन जो है 5 गुना जो है हो सकता है 10 सालों के अंदर। और बाकी जो है हम काजू के लिए भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो है उसका उत्पादन हिंदुस्तान में ज़्यादा हो, ताकि हमारा रॉ कैश्यू नट के ऊपर जो है रिलायंस ना रहे। हमारी एक आपसे जो है अभिनंदन है, एक रिक्वेस्ट है हमारे से कि गवर्नमेंट को हमारी तरफ से एक मैसेज दें कि हमारा ये जो GST है कुछ आइटमों के ऊपर 5% है और कुछ पे 12 है, सबको 5% पे ले आइए। हमारी सबसे रिक्वेस्ट है। बाकी हमारे भाइयों के अगर और कोई जो है रिक्वेस्ट हो, अभिनंदन हो, जरा उनको बोले ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू आवर चीफ गेस्ट। आपने इतना प्रोत्साहन दिया मेवा इंडिया 2024 को। हम चाहेंगे कि बिफोर आप यू हेड टुवर्ड्स द एग्जीबिशन एरिया, मैं दीपक अग्रवाल को बुलाना चाहूँगी। एक आपको बस टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एट द एंड फ्रॉम द टीम साइड। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां। एंड मैं चाहूँगी इफ वी कैन रिक्वेस्ट आवर चीफ गेस्ट टू प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। धन्यवाद हम बोलना चाहेंगे आपको मेवा इंडिया 2024 की तरफ से आपकी जोरदार तालियों के साथ। A roaring round of applause, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां होनी चाहिए. And let's give him a standing ovation, everyone.
a standing ovation, जो कि इनका विजन है। इन्होंने इंडिया को ग्रोथ की तरफ हमेशा काफ़ी प्रोत्साहन दिया है और मेवा इंडिया की तरफ से एक छोटी भेंट हमारी तरफ से एक्सेप्ट करिए। एंड विद दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां वंस अगेन for the vision forward of Meva India 2024. With that, thank you so much and we request our chief guest to be now escorted. हम चाहेंगे nobody crowds around. हमारे chief guest अभी एग्जीबिशन एरिया की तरफ जाएंगे, बट हम चाहेंगे आप उनको स्पेस दीजिए। द प्रोटोकॉल शुड बी फॉलोड, प्लीज डोंट क्राउड अराउंड द स्टेज। एंड वंस अगेन अ बिग थैंक यू टू आवर चीफ गेस्ट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। लेडीज एंड जेंटलमैन, श्री ओम बिरला जी। सिस्टम नहीं है, क्या मदद कर सकते हो? एग्जीबिशन के अंदर जो है यहाँ पे पैकेजिंग वाले काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ अलग अलग किस्म के जो है कच्चा माल आते हैं, क्या कारण है? एक्चुअली ये 2009 में कॉन्सेप्ट सोचा था एंड अभी पैंडेमिक के बाद लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो आप ट्राई कीजिए। क्या हाल है जगदीश सिंह जी? बहुत बढ़िया है। वेरी मच। हमारे जो शिकायत उनके की है। Look here, this camera. Center, sir. The center, sir, right here. Thank you. चलिए चलिए रास्ता दीजिए रास्ता। दुबई जाते हैं, दुबई। आ गए आप आ गए। जगह छोड़ दी, जगह छोड़ दी, जगह छोड़ दी। यही है। हाँ यही। और ये हमारे ये आपके लिए पैकिंग है सारी। सर ये अलग अलग सर स्नैपड्रैगन में कि युवा पीढ़ी स्नैपड्रैगन कहाँ है? ये सर ये कश्मीर आ जाओ ना आगे। जिंदगी वही निकाल सर, एक ये साइन करना है। Sir, सामने center camera, this camera, right here, right here, right here, this camera, please. This camera right here, sir. ये पैकिंग गिफ्ट है, ये भी बनाते दिवाली को। दिवाली का ऐसे क्या नाम है आपका? दीपक अग्रवाल। कहाँ के हो? थोड़ा सा अंदर जाओ। क्या है ये? हम जैसे भिगोते हैं।
अपन डेली मीट होते हैं रात को, और इसमें छोटे पाउचेस बनाए हमने जो ज़्यादा छोटे पाउचेस का चलेगा सर। इधर सर आ गए, पीछे सर आ रहे हैं। आपके कारण हटा लो एक बार इसरो में यहाँ पे एक फोटो जो खास जो सीजन वाले साथ में मैन कैमरा सर, Sir, main camera, please. Sir, right here in the center.